Hi, hello friends. Welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss the most important topics from physical chemistry, which is your statistical thermodynamics. So in the earlier video we already discussed some of the major concept from the chemical thermodynamics. So today we are started with the statistical thermodynamic. So before start with this particular topic, first we should understand what is the statistical mechanics, because to understand the statistical thermodynamic, first we should understand the statistical mechanics means what. Basically statistical mechanics, it is actually, we can say, the fusion of your quantum and the classical mechanics, because in the quantum mechanics we are going to be dealing individual particles and we study their properties. Means we are basically talking about the microscopic properties of the particles and we are going to be individually studying it, whereas in classical mechanics we are talking about the macroscopic properties of the particles. Okay, so whereas the statistical mechanics, in which we are going to be talking about the bulk matter. So it is actually science of the bulk matter, where we are going to be dealing with the so many large number of particles. Okay, so when we study the science and when we understand the theoretical part of the your large number of particles, we can call it as what your statistical thermodynamics. Okay, so depending upon the different physical situations, they are going to be encountered in the nature, the three kinds of the statistics. So depending upon that, they are actually having three types. First will be the MB statistics. Now MB statistics means over here the Maxwell-Boltzmann statistics, where the second one will be the BE. BE का यहाँ पर मतलब है स्टूडेंट Bose-Einstein statistics. And third one will be the FD statistics, means your Fermi-Dirac statistic. Now when we talking about all these terms, so in the today's session we are going to briefly, okay, talking on the your MB statistics. Okay, so now to understand the completely your Maxwell-Boltzmann statistics, you first need to understand some of the major key points, because your entire MB statistic is depending upon only the two concept. That will be the first will be the most probable distribution and the entropy term, which is given by this particular mathematical expression, that is S is equal to K ln W. So this is your equation 1, we can see it. So these are the actually major key point to understand the your Maxwell-Boltzmann statistics. But before understand, first we understand the thermodynamic word is there. So what is the role of thermodynamic in the statistical mechanics? Means suppose here we are going to be consider one of the container. Okay, so for example मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है. In that container now there will be the large number of particles are going to be present. Now these particles which are present into your system, means your container will be acts as a system. In that they are going to be completely ignore the internal structure of the system. So that is your first thing you should keep in mind, कि जो internal जो structure है हमारे system का वो हमें ignore करना है. Second thing, the whatever particles, okay, present into the container or the system, they are distinguishable in nature. Okay, so the particles are assumed to be distinguishable to each other. Distinguishable का मतलब यहाँ पर है कि जितने भी हमारे particles हैं, they might be similar for their properties, but they are distinguishable, वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए. ठीक है. Then there will be the no any restriction for the occupancy in the present container or in the present system. मतलब there will be the no any restriction कि उनकी occupancy उनके system में कहाँ पर है. So there will be the no any restriction. Okay, so we can say that any number of particles may occupy the same energy level, okay, or any energy level. So the particles, okay, when obey these kinds of all the theoretical part or the concept, these we can call it as a what your Maxwell-Boltzmann statistic. एंड जो पार्टिकल्स ये सारे रूल्स को ओबे करते हैं, उन पार्टिकल को यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट क्या बोलते हैं? बोल्ट्जॉन्स. और सेकेंड नेम है उसके लिए मैक्सवेलॉन्स. तो वो पार्टिकल्स जो सारे मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के रूल्स को फॉलो करते हैं, उन पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जॉन्स और मैक्सवेलॉन्स. अब समझ में आया कि कौन कौन से रूल? एक तो दे आर गोइंग टू बी इग्नोर द इंटरनल स्ट्रक्चर, देयर विल बी द नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द ऑक्यूपेंसी इनटू द कंटेनर, एंड
सेकेंड विल बी दे आर गोइंग टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। तो फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल बताना चाहूंगी टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। मान लीजिए आप कहीं थिएटर में जाते हो, तो थिएटर में आपने देखा होगा सीट का जो अरेंजमेंट होता है लाइक फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऐसे होता है, बराबर, मतलब एक नीचे ऐसे लाइक दिस 1 2 3, तो ऐसे उनका सीरीज बढ़ते जाता है, ठीक है। तो लाइक सपोज मान लीजिए ये मेरा थिएटर है, दीज आर द यूर एक्चुअली सिटिंग अरेंजमेंट ओवर हियर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मान लो थिएटर में जितने भी मर्जी मान लो आप मतलब आदमी लोग वहां पर इंसर्ट हो गए, तो देर विल बी द नो एनी एक्चुअली दैट रिस्ट्रिक्शन कि आप कहाँ पर बैठोगे, आप कहाँ पर भी बैठो, ठीक है। तो उसे मतलब हम लोग यहाँ पर बोलते हैं दैट मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब आप मान लीजिए कि वहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट है, दे आर योर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दे सीटेड एनीवेयर, सो देयर विल बी द नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द सिटिंग अरेंजमेंट एंड यू कैन सीट देयर। तो अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन थिएटर में किस तरीके से हुआ है। सो डेफिनेटली थिएटर में जो भी लोग वहां पे बैठे, दे आर गोइंग टू बी वेरी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, बट दे आर ऑल आर द ह्यूमन बींग्स, सो दे आर व्हाट सेम इन द प्रॉपर्टीज, बट दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नेचर, मतलब एक दूसरे से वो अलग है, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट अलग है। तो वो भाई हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि फिर पॉसिबिलिटी कहते हैं हाउ दे आर गोइंग टू बी सिटिंग इनटू द थिएटर। तो वो स्टैटिस्टिक मतलब है यहाँ पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, तो ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए जो हमें लगेगा, मतलब एट द एंड ऑफ दिस मतलब theory, you should understand the most probable distribution, or you should also understand the concept of particles of the macroscopic system. Okay, so now just take a look. The first term over here, that will be the, these are the actually S is equal to K ln W. It is actually very famous, your third law of thermodynamics. ये आपको पता होगा, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन लिखा। अब यहाँ पे व्हाट इज द एक्चुअली एस, तो सबको पता है दैट एस विल बी द यूर एंट्रोपी टर्म, बट व्हाट विल बी द के यहाँ पर जो है स्टूडेंट, दैट विल बी द यूर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू है। देन W will be the actually your thermodynamic probability. So thermodynamic probability is nothing but the mathematical expression for your W is n factorial divided by small letter n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial and n ith component means I level factorial. So basically we can say that this thermodynamic probability means nothing but the, it is actually talking about the distinguished particles occupying the energy levels in the system. So we can say the number of arrangements, okay, present to the system. So basically the thermodynamic probability means W gives you the concept of the particles of the microscopic system, their arrangement. So in together all these terms we can write it down capital letter, okay, pi, then ni factorial. Okay, now n is actually nothing but the all the summation of nth component. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करते हैं एज ए इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, यहाँ तक आई होप सो यू शुड नाउ completely clear. Now the next will be, there will be the two condition over here that we should apply because we study the system. तो सिस्टम में हमें सबसे पहले तो देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है हमारे कंटेनर सिस्टम में एंड व्हाट विल बी द एनर्जी. सो हियर द कैपिटल लेटर एन, it indicates the summation of ni ith over the I, that will be the having constant value. Again the energy means the total energy of the system is again going to be constant, having what summation over the I, ni and the what epsilon I. So these are the actually two equations. The first equation is talking about the total number of particles is constant, that is a mathematical expression, and the second equation will be the total energy of the system is going to be constant. These are the mathematical expression. Now we are going to be consider all these, both the equation number 3 we are going to be consider for the equation number 2. So what you so what things we are getting, so the your thermodynamic probability means your W is equal to what, your n factorial, then your pi, okay, which is given to now gi upon ni factorial and gi over the what raised by ni factorial into constant. So these are the actually your equation number 4. अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 4 यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज एक्चुअली व्हाट, तो ये कहाँ से आया. सो थर्स मान लीजिए दैट एन आई एक्चुअली द पार्टिकल्स इन द ith एनर्जी लेवल एंड द जी आई रेज बाय पावर एन आई, दीज आर द एक्चुअली व्हाट यूर पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब मान लीजिए कि एन आई जो है वो हमारा क्या है, पार्टिकल्स इन द ith energy level, whereas the gi raised by power ni, it is actually
possible distribution. Hence thermodynamic probability means W we can write it down in this pattern. तो ये हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है. आई होप सो नाउ यू शुड क्लियर. सो यहाँ पर जी आई एक्चुअली बी द डीजनरेसी. तो जी आई यहाँ पर आपका क्या है, डीजनरेसी, और वी कैन से द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द योर एनर्जी लेवल एप्सिलॉन आई. Okay, epsilon I. So we can say the degeneracy of your particles, the multiplicity of the energy level epsilon I. ठीक है. तो ये हमारा, तो जी आई इट इज एक्चुअली वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द पार्टिकल इनटू द वेरियस एनर्जी लेवल. सो वी कैन गेट द ये इक्वेशन नंबर 4. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, okay, now from equation 4, taking logarithm of both the sides, then what you will get. So now we are going to be taking the logs on both the sides over here. So just take a look. Now I am going to be take the log. अब log हम लोग को लेना है. अब ln का मतलब यहाँ पर है natural logarithm only. So I am taking the log ln w, then ln n factorial plus summation of ith component, then n I, यहाँ पर आया ln g I माइनस, बिकॉज यहाँ पर क्या है वो डिवाइड में है, माइनस समेशन ऑफ फैक्टोरियल ln एन आई फैक्टोरियल प्लस कांस्टेंट. सो यू विल गेट द इक्वेशन 5. अब इक्वेशन 5 को हम लोगों ने 4 को क्या किया, नेचुरल लॉगरिथम दोनों तरफ से लगा लिया. सो यू विल गेट द इक्वेशन 5. अब यहाँ पर आप अगर देखोगे ना, वी आर गोइंग टू बी अप्लाइंग द स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन. सो बेसिकली व्हेन वी अप्लाइंग द स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज नाउ हियर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू. सो व्हेन मैथमेटिक्स, बिकॉज यहाँ पर अब क्या है, फैक्टोरियल टर्म है, देयर विल बी द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिस्टम. सो इन दैट condition, in order to identify and determine the exact value, we applying the Stirling approximation. So take a look that we assume that n is very very large number, and that's why we apply the Stirling approximation, which simplifies the ln n factorial term. तो वो सिंप्लीफाई करने के लिए, वो मैथमेटिकल टर्म सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. देन व्हाट विल हैपन, सो नाउ हियर द एल एन आई फैक्टोरियल जो है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन वी कैन राइट इट डाउन दैट एन ln n माइनस एन. सो दीज आर एक्चुअली योर सिंप्लीफाइड टर्म ऑफ द योर स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन विच इज गिवन बाय इक्वेशन 6. हम लोगों ने इसको लिखा. अब ये जो है इक्वेशन 6, ये हम लोग अप्लाई करेंगे इक्वेशन 5 में, एंड वी आर गोइंग टू बी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन 5. तो सबसे पहले क्या करेंगे, देख लीजिए, यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन फॉर एल एन आई फैक्टोरियल इक्वेशन 5. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब देख लीजिए, हम लोगों ने लिया ln w एज सच, ln n फैक्टोरियल एज सच, समेशन ऑफ ith कंपोनेंट एन आई एल एन जी आई. हमें ये टर्म को क्या करना है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन में डालना है. तो आएगा क्या, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, समेशन ऑफ ith कंपोनेंट एन एल एन है ना, तो यहाँ पे हमारा एन क्या है, एन आई. सो एन आई ln एन आई प्लस समेशन ऑफ एन लिखा है, तो समेशन ऑफ एन आई फैक्टोरियल. तो ये सॉरी एन आई समेशन ऑफ आई, समेशन ओवर आई एन आई, देन प्लस कांस्टेंट. तो हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया. अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है हमारा, इसमें एल एन फैक्टोरियल में, उसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन में. सो जस्ट टेक अ लुक, एन एल एन एन माइनस एन, ये टर्म ऐसा सच आएगा. ये जो हम लोगों ने लिखा था डिराइव वो किया. अब हमें ये पता है दैट समेशन ओवर द आई एन आई इज नथिंग बट व्हाट योर कैपिटल लेटर एन. ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन 2 में पता है आपको, तो ये है. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कैपिटल लेटर एन, इसके प्लेस पर ये प्लस कांस्टेंट. अब यहाँ पर देख लो, ये माइनस एन प्लस एन, बोथ द एन गेट कैंसल. तो रिमेनिंग यहाँ पे बचेगा क्या, एन ln n प्लस समेशन ओवर आई एन आई ln जी आई माइनस समेशन ओवर आई एन आई ln एन आई plus constant. So this is how you will get the equation number 7. So equation 5 you are going to be simplified by using the Stirling approximation. ठीक है. Now after getting the equation number 7, we are going to be now, in order to हमें फाइनली सॉल्व क्या करना है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू फाइंड आउट करना है. वो मैथमेटिकल टर्म को सॉल्व करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, वी आर डिफरेंशिएटिंग एंड बेयरिंग इन माइंड दैट द एन टर्म and the gi are going to be constant. हम लोग कंसिडर करेंगे एंड देन वी डिफरेंशिएट. देन व्हाट यू विल गेट, सी. तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया डी ln w समेशन ऑफ, अब ये तो हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, कांस्टेंट. सो द होल टर्म विल बी गेट 0, देन समेशन ऑफ आई. अब यहाँ पे देख लो, जी आई टर्म विल बी कंसिडर एज कांस्टेंट बट नॉट एन आई. तो डिफरेंशिएट हम लोग किसको करेंगे, एन आई को. तो ln जी आई वी कीप इट एज सच एंड डी एन आई हम लोगों ने लिखा. ठीक है. डिफरेंशिएशन आपको आई होप सो पता है, ये समझ कर ही मैं चल रही हूँ. देन अगेन माइनस, अब यहाँ पर दोनों टर्म
कांस्टेंट कोई भी नहीं, तो यहाँ पे दोनों का, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखते, समेशन ओवर आई लैन एन आई लिखा और इसका डेरिवेटिव लिया डी एन आई। अब इसको कांस्टेंट रखते हैं, दैट समेशन ऑफ ओवर आई एन आई और डी एल एन लैन एन आई। ठीक है, सो दिस इज हाउ आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7 यू विल गेट इक्वेशन नंबर 8। क्लियर है। अब इक्वेशन 8 मिलने के बाद, ठीक है, हमें ये चीजें पता है दैट द समेशन ओवर आई एन आई डी एल एन एन आई, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज एक्चुअली मैथमेटिकल कंसेप्ट। सो द डी एल एन एन आई विल बी, वी कैन राइट इट डाउन डी एन आई अपॉन एन आई, बिकॉज यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम है, सो वी आर गोइंग टू कीप इट इनटू द लॉ इन द डिवाइड फॉर्म। अगेन वी नो दैट द समेशन ऑफ डी आई, ये दोनों कैंसिल हुआ, समेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो यू विल गेट द इक्वेशन 9। नाउ वी आर अप्लाइंग this equation when your system will be the what, at equilibrium. So hence at equilibrium, now these d ln w, okay, is equal to what, now terms are going to be remaining, because these are actually postulate we apply only at the equilibrium condition. So what things are going to be remaining now? So in equation 8, d ln w summation of ln gi dni ये रहेगा, then minus summation over I लैन एन आई डी एन आई, तो ये जो होल टर्म है ये वाला, दैट गोइंग टू बी टर्न्स टू 0 बिकॉज द कंडीशन विल बी व्हाट यू आर अप्लाइंग द एट इक्विलिब्रियम। तो ये थर्ड वाला जो है फैक्टर, ये यहाँ पे 0 होगा। सो रिमेनिंग क्या बचेगा, ये दो टर्म। सो डी लैन डब्ल्यू यू विल गेट द इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, आई होप सो नाउ यहाँ तक आपको क्लियर है ना। आफ्टर गेटिंग द इक्वेशन 10, okay, next what you are going to do, now you are going to be solve applying over here the method of Lagrange's undetermined multipliers। तो सबसे पहले सुन लो, बिकॉज अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल फिगर, सो वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वी रिक्वायर सम ऑफ द वैल्यू। सो टू determine that particular, here we are applying the method of Lagrange's undetermined multipliers into the equation term। मतलब अब यहाँ पे इंडिविजुअली क्या करेंगे हम लोग, the first term that is going to be multiply with alpha, then second factor multiply with the what, beta, and then the third factor we are getting together subtract and we will get the final value। तो उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं Lagrange's undetermined multipliers। ठीक है, तो ये सब मल्टीप्लायर जब हम लोग अप्लाई करते हैं, so over that whatever the last equation you will get, that will be the summation over I ln gi upon ni। ठीक है, रेस टू डी एन। अब यहाँ पर देख लो, ये अगर समेशन हम लोगों ने यहाँ पर दे क्या कॉमन में, तो ये यहाँ पर क्या है, देखो ये फर्स्ट पार्ट सेम है, डी एन आई सेम है, तो डी एन आई को बाहर निकाला। अब यहाँ पर बचा क्या, लैन जी आई लैन एन आई, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैन जी आई अपॉन एन आई डी एन आई इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म इज इक्वल टू 0 हुआ बिकॉज इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो यू विल गेट नाउ इक्वेशन 11 अकॉर्डिंग टू योर मेथड ऑफ लैग्रेंजेस। अब लैग्रेंजेस में हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी आर पुटिंग द अल्फा एंड बीटा वैल्यू। ठीक है, देन समेशन ओवर दी आई लैन जी आई अपॉन एन आई, तो ये है एक्चुअली आपका लैग्रेंजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर विच इज माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, और डी एन आई को हम लोगों ने बाहर निकाला। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, जो आपके फर्स्ट जो इक्वेशन थे, ठीक है, सो दीज आर द एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन नंबर 3, दैट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द एनर्जी, that things you know, and then you will get this particular equation। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, the first equation will be multiply with alpha, then this will be multiply with beta, and then whatever we are getting answer we are going to be subtract from this, and this is how you will get this particular value। चाहिए तो आपको मैं इसका PDF फाइल प्रोवाइड करूंगी, ये मैथमेटिकल एक्चुअली कंसेप्ट है हाउ यू विल गेट। तो हमें मिला अब ये इक्वेशन इन द प्लेस ऑफ द इक्वेशन 11। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 12। तो ये लैग्रेंजेस मैथमेटिकल टर्म है एक्चुअली। ठीक है ना, आफ्टर गेटिंग एक्चुअली दिस टर्म, योर नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट नाउ, द लैन जी आई अपॉन एन आई, बिकॉज वी नो दैट द समेशन ओवर आई डी एन आई इज इक्वल टू व्हाट योर 0 टर्म। तो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पर, लैन जी आई अपॉन एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू 0, बिकॉज दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट 0। Okay, summation over I dni is equal to 0। Now the next one will be the ln ji ni is equal to, ये पूरा टर्म हम लोगों ने is equal to के इस साइड लिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। इसको हम लोग और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट ln ni, ओके, देन ln ji यहाँ पर आया तो हमें मिलेगा क्या, माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। सिर्फ रीअरेंजमेंट कर रही हूँ मैं इक्वेशन को। ठीक है, देन फाइनली हम लोगों ने नेचुरल लॉगरिथम को हटाया, तो हमें फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा, एन आई जी आई ई रेज बाय पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई, एंड
This is how whatever final equation you will get, the equation number 13, this is called as what your Maxwell-Boltzmann distribution law. So by using this particular mathematical expression, you should easily identify that how many number of particles are going to be distributed into the container or into the system. ठीक है, यहाँ तक आई होप सो नाउ यू शुड कंप्लीटली क्लियर द पिक्चर. अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने पहले ही बोला है दैट अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स. अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स का मतलब है कि हमें यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू तो पता नहीं है, तो वो भी तो हमें यहाँ पर डिटरमाइन करनी है. तो बेसिकली जो हमारा जो यहाँ पे बीटा जो होता है, उस बीटा की वैल्यू होती है -1/kT. अब इसका भी एक्चुअली देयर विल बी द सम है प्रॉब्लम से कि हम लोग वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल आप समझ लीजिए दीज आर द एक्चुअली वैल्यू that you will get over here. So after getting this suppose beta value, तो हम लोग अगर इक्वेशन 13 में इसको पुट करते, so what you will get that ni then gi e अब रेज बाय व्हाट योर पावर अल्फा. ठीक है, तो अब ये नेगेटिव है तो हम लोग इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे अल्फा, देन रेज बाय माइनस इसको हम लोगों ने डाला ei/kt. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर मिला बिकॉज यहाँ पर क्या है n फैक्टोरियल gi देन e⁻⁴ ठीक है, तो ये एक्चुअली हम लोगों को मतलब सॉल्व करना है, तो इस टर्म को मैंने अब इस टर्म में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, -i/kt हम लोगों ने डाला, ε/i/kt जो वैल्यू है वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, ये वाली बीटा की वैल्यू. देन व्हाट सपोज अभी मान लीजिए इसका मैंने यहाँ पे समेशन लिया ओवर i, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ni समेशन i gi e⁻⁴ e⁻⁴i. ये जो इक्वेशन है सपोज मान लीजिए, अब ये मुझे पता है दैट टोटल n है इसका मतलब, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा समेशन ओवर i gi e⁻⁴i. ए इक्वेशन मुझे पता है, तो अब मुझे e अल्फा की अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आई एम गोइंग टू बी रीअरेंज इन द इक्वेशन. सो e अल्फा इज इक्वल टू n यहाँ पर है, तो ये पूरा टर्म यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, समेशन ओवर i यहाँ पे बचेगा gi e⁻⁴i. तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट n डिवाइडेड बाय समेशन ओवर i gi e⁻⁴. अब बीटा ये है कि वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी ei/kt. सो इज नथिंग बट दैट n अपॉन, अब ये जो पूरा जो टर्म है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन, इज नथिंग बट द q. So the q will be the most important value, okay, into the statistical mechanics, that how we are going to be determine the partition function. Okay, so now again this q, okay, is nothing but the summation of over the i gi e⁻⁴ i, और बीटा i की वैल्यू यहाँ पर क्या है, समेशन ओवर i gi e⁻⁻-ei/kt. So this is how you can also identify the partition function value. But the actual over here, you should remember that these are the actually your what Maxwell-Boltzmann distribution law. Okay, I hope so student you should completely understand now over here the what is the Maxwell-Boltzmann statistics and how we are going to be identify the number of particles, okay, which is distributed into the system or the container. Okay, but still if you have any doubt, okay, regarding this derivation part, so definitely you should ask me your doubts. I definitely resolve your all the problems. Okay, so once again thank you so much watching this video. If you really like this video, so don't forget to subscribe us. Okay, so thanks a lot student.